So, we are starting our class with a short prayer and meditation. Let us pray. Dear God, you are our Creator. We thank you for this life and everything you have given us. We thank you for good health, wealth, and wisdom. You are the God of abundance. Thank you for the support of such a good family, great mentors, and the guidance and mentors you have given to us. Thank you for good friends. Your favor is on my health, wealth, and wisdom. Thank you that with your grace, I am clearing JEE 2022 and NEET 2022 in flying colors and getting admission into my dream college. With your grace, anything is possible. Everything is attainable. I thank you in advance that I have cleared NEET examination and JEE examination in the year 2022 and have got admission into the college of my dreams. Thank you in advance for assisting me, guiding me, and motivating me to work hard and easy. Thank you, thank you, thank you. Slowly and steadily, you may open your eyes with a smile on the face. All right, class. So let us begin the class. So we'll have a quick revision of what we had read the last class before we continue ahead. So class, in case I am audible to you and in case my video is very clearly visible to you, please raise your hand. Raise your hand if my voice is audible and the video is visible to you. Yes, class, get going. Okay, so Kushal, Amish, Mahevish, Kartikeya, Viraj, Enya, Shrish, Tejas, Rahul, Chaitanya. In case, Bacha, you can hear my voice clearly, please raise your hand. Yes, Chaitanya. You can message me if there is any issue happening at your end, Bacha. You can put me a message, no worries. Yes, Bacha. Thank you, class. You can bring your hands down. So I'll remind once again, everyone, we'll keep our videos, like all of you will be keeping your videos off as we go through the lecture. At any point of time, if you have any doubt, mark it in your copies where you are taking down your lecture notes. In the class, I'll give you some time, like I always do. Wherever you have any queries, we can clear them before moving ahead, right? Also, soon your assignments are coming up, soon your tests are coming up, right? So get geared up, keep practicing, keep revising whatever we have read in class in case you don't have any other source, right? Okay, so let us get going. So this is your course instructor Khushwant Fatnani, and we are reading physics for class 11th and 12th, and particularly in order to prepare
which is actually going to help us in order to clear our JEE and NEET examinations, right? So we had begun with the chapter vectors, right? Then we had started the concept of mathematical tools. We did a quite lot of things, right? In mathematical tools, these tools are the ones which are going to help you, or it is basically the mathematics which is going to help you in physics. अगर आपका mathematics building की नींव है, that is the basis of your building, then if this is mathematics, right, one of the ingredients of your basis, then on this you will have your imarat, right? That is your entire building of physics is based on this mathematics. So you all have to be taking it with all the joy, मस्ती से सीखना है, with all the enjoyment, और जहां जहां कोई भी query हो वो पूछना है और खूब अच्छे से मेहनत करनी है, right? Now we are taking a short break as in we'll continue this mathematics after some time. We'll continue this mathematics. So let's say this is part 2A. So we'll be doing part 2B after this. जो भी हमने अभी तक पढ़ा, इसके बाद जो भी है सिलेबस उसको हम एक खास चैप्टर के बाद करेंगे. और वो चैप्टर क्या है? उस चैप्टर का नाम है आपके NCERT बुक के अकॉर्डिंग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. वन पार्ट इज थ्योरी, राइट, एंड देयर इज क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ थ्योरी इन दिस चैप्टर. सेकंड इज द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, राइट. तो आपके स्कूल के एग्जाम्स के लिए इस थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि समझ कि ये चीजें कैसे आई हैं या क्या है, राइट, वो मैं आपको यहाँ क्लास में पढ़ा रहा हूँ. रही बात एग्जैक्ट डेफिनेशंस की जो आपको स्कूलों के एग्जाम में लिखनी होती है, वो डेफिनेशंस आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेंगे, करेक्ट. तो एक बार अगर मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट समझा दिया, इट मींस कि जैसे ही आप वो पढ़ोगे अपनी एनसीईआरटी की बुक से, थिंग्स विल बी एज इजी एज एबीसी फॉर ऑल ऑफ यू, राइट. आई रिपीट, things will be as easy as ABC for all of you, right? You can trust me on that, right? Now, so I'll be explaining concept and I'll be explaining कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं और उसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या है, right? So by approach I mean how I will tell you the approach. We'll solve some questions in the class. बाकी के क्वेश्चंस आपको कहां से बनाने हैं, I'll let you know, right? So this is what we are going to do today, the chapter units and measurements. इस चैप्टर के हम आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, राइट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे. आप इस चैप्टर को मेरे पढ़ाने के बाद आपके पास आज का पूरा दिन है, दैट इज today's entire day, that is Saturday, right? Then you have Sunday, then Monday हम एक बार फिर से मिलेंगे in the afternoon. This will be a special class, right? And on Monday we will be again either practicing some questions of this chapter, units and measurements, because this is a very short chapter and it is important at the same time, right? तो Monday को हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, राइट. और अगर आज कोई कॉन्सेप्ट हैं जो हम सपोज नहीं कवर करते हैं, तो मंडे को वो बचे हुए रिमेनिंग कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, ठीक है. तो ये है वो रोड मैप जो हम आज से लेकर मंडे तक फॉलो करेंगे, करेक्ट. सो दिस इज द रोड मैप दैट जो हमने कुछ इसका पार्ट फॉलो कर लिया है और कुछ पार्ट आने वाले समय में फॉलो करने वाले हैं. ऑल राइट, अब दिस इज दैट कॉन्सेप्ट. अगली बात आप लोगों के लिए, टू मेक श्योर कि आप लोगों का जो भी असाइनमेंट्स आप मुझे सबमिट करते हो, राइट, वो सही तरीके से किसी एक जगह आ सकें, आई हैव आस्क्ड यू ऑल टू ज्वाइन गूगल
सो गूगल क्लासरूम के लिए अगर आप में से सभी के पास कोड है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, और नहीं है, राइट, अगर नहीं है तो इन केस अगर आपके पास गूगल क्लासरूम का कोड नहीं है तो मुझसे पूछ लीजिए ऑन द ग्रुप, आई विल लेट यू नो, राइट. सो फर्स्ट थिंग दैट यू ऑल आर गोइंग टू डू इज टू जॉइन द गूगल क्लासरूम इफ यू हैवंट ऑलरेडी, राइट. सेकेंड थिंग कि भाई हम असाइनमेंट इसमें सबमिट करेंगे कैसे, राइट. देयर आर सम स्टूडेंट्स विद डाउट इन इट. सिंपली आप गूगल पे लिखिए, गो ऑन गूगल एंड टाइप हाउ टू सबमिट असाइनमेंट्स ऑन गूगल क्लासरूम. आपके पास लिस्ट ऑफ वीडियोस आ जाएंगे. दीज आर सेल्फ ट्यूटोरियल्स, मतलब जस्ट टाइप इट ऑन गूगल. इसको कहते हैं गूगल करना, राइट. गूगलिंग इज नाउ-a-days a verb. So just type on Google how to submit the assignment in case you don't know. Suppose उससे भी समझ में नहीं आता है, so just let me know on WhatsApp. I'll tell you a time, उस पे हम बात करेंगे and we'll work on it, right? तो उस पे आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे जब भी आपको असाइनमेंट दिया जाता है, राइट. सो असाइनमेंट सबमिशन विल टेक प्लेस ऑन गूगल क्लासरूम. अब बात करते हैं प्रैक्टिस क्लासेस की, राइट. तो मैंने आप लोगों को अब तक हमने कुछ प्रैक्टिस क्लासेस ली हैं और कुछ प्रैक्टिस क्लासेस ले रहे हैं, राइट. नाउ सिंस ऑन मंडे हम ऑलरेडी ये क्लास ले रहे हैं जिसमें हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, राइट. तो मंडे के लिए वी विल हैव अ प्रैक्टिस क्लास वेयर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो आज रह जाएंगे और कुछ प्रैक्टिस करेंगे उन कॉन्सेप्ट्स की जो हम आज पढ़ेंगे. तो आपको संडे को क्या करना है, राइट. मंडे की प्रैक्टिस क्लास के लिए आपको संडे को थोड़ी तैयारी करनी है. कैसे करनी है? संडे को यानी कि इसके एक दिन पहले, right, on Sunday, one day before, आपको अपनी NCERT के बुक से अच्छे से ये चैप्टर कंप्लीट करना है. अपने लिए टाइम रख लेना, ऐसा नहीं हो कि पूरा दिन वही चैप्टर ही पढ़ रहे हैं. नो, कीप अ टाइम फॉर यू, राइट. लेट्स से मॉर्निंग 5 से 7 सिट, कोई भी पेज उठाओ, राइट, रीड द पेज, write what you could understand, then next page read some paragraphs, पढ़ो, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया लिख लो अपने पास. सो लेट्स से आपके पास, आई टेल यू कि बुक कैसे पढ़ी जाती है. अब ना थोड़ा अलग तरीके से आपको पढ़ाई करनी है. नॉवल नहीं है, राइट. इट्स अ फिजिक्स बुक, राइट. तो हाउ डू यू रीड अ बुक? वेरी इंपॉर्टेंट. रीड अ पैराग्राफ, राइट. मैं आपको नोट्स बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ. रीड अ पैराग्राफ, स्टेप 1, रीड इट, राइट. अपने दिमाग में प्रोसेस होने दो, मैंने क्या पढ़ा, देखो समझ में आया क्या, नहीं आया दोबारा पढ़ो, राइट. दोबारा पढ़ो, देखो कि कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है, राइट. सपोज जो भी फॉर्मूला दिया हुआ हो, आप अपने पास, आपको याद है मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला कॉपी बनाने बोला है, राइट. तो अपनी फॉर्मूला कॉपी में जो भी यहां से आपको समझ में आया इन अ की नोट फॉर्म, मतलब जैसे एक पैराग्राफ पढ़ा, अब एक पैराग्राफ को कॉपी नहीं करना है. एक पैराग्राफ से जो समझ में आया, वट एवर यू कुड अंडरस्टैंड इन वन पैराग्राफ, उसको एक लाइन के अंदर लिखना है. की पॉइंट, ये मुझे समझ में आया, राइट. फिर सेकेंड की पॉइंट, जो सेकेंड पैराग्राफ से समझ में आया, राइट. फिर एक बार जब की पॉइंट्स लिख लिए, तब यहां जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला को आपने अपने फॉर्मूला कॉपी में लिखा. करेक्ट, फॉर्मूला को अपनी फॉर्मूला कॉपी में लिखा. फिर अब मैंने आप लोगों को बताया है कि फॉर्मूला कॉपी में हमें सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिखना है, उसका एप्लीकेशन भी लिखना है कि कैसे यूज हो रहा है वो फॉर्मूला, राइट. और इसका तरीका है, सपोज आपने यहाँ पर ये एग्जाम्पल सॉल्व है, राइट. कोई एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं इन टेक्स्ट एग्जाम्पल. क्या कहते हैं? इन टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के बीच बीच में दिया हुआ एग्जाम्पल, राइट. तो यू हैव टू टेक इट अप. जैसे आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, आई विल शेयर माय स्क्रीन. I have my NCRT here, so just a minute. I think I have the NCRT, just a minute plus. So hold on for a minute, I'll show you how, right? Just a minute.
Yeah, so I'll share the screen with you all 1 minute. और ये मुझे कैसे मिला ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? Okay, somebody has said my voice is breaking. Okay, Amish, is the voice still breaking? Let me know. No, sir, it's clear now. Okay, right. Chaitanya, in case you don't have the code, please look in the group. ग्रुप के चैट को स्क्रॉल अप करो, आपको मिल जाएगा, राइट? और जिसके पास भी क्लास का ग्रुप ना हो, प्लीज मुझे मैसेज कर दो, सो दैट आई सेंड यू द क्लासरूम कोड, गूगल क्लासरूम कोड, जहाँ पे आप अपने हर दिन असाइनमेंट सबमिट करेंगे, राइट? सो ऑल राइट, so sharing the screen with all of you, just give me a minute. I'm opening the NCRT with me, right? Yes, Chaitanya, आप बोलना, 1 मिनट बचा, रुक जाओ, थोड़ा रुको. Right. So class, in case if this NCRT page is visible to all of you, please raise your hand. Please raise your hand if you're able to see this NCRT page in front of you. अगर clearly NCRT page दिख रहा है तो please raise your hand. Yes. Okay, so I can see. Okay. Shrish, बच्चा आपको दिख रहा है क्या page NCRT का? Okay, right. Thank you, class. You can bring your hands down. Thank you. Yeah. तो देखो अब. हाँ. Have a look. राइट? तो अब इस एनसीईआरटी के पेज में, दिस इज चैप्टर नंबर 2, राइट? अब आपको ये चैप्टर इस तरह से देखो, यहाँ पर इधर आपके पास बुक की अगर सॉफ्ट हार्ड कॉपी है, दैट इज एनसीईआरटी अगर है तो बहुत अच्छी बात है, राइट? सपोज अगर एनसीईआरटी की आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, तो आई टेल यू कि कैसे ये कॉपी या ये सॉफ्ट कॉपी आप इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? सो वन बाय वन हैव अ लुक इस तरह से. जैसे सपोज अब आई एम टीचिंग यू कि कैसे हमें एक नोट बनाना है, राइट? सो जैसे लेट अस स्क्रॉल टू सम गुड पेज जहां पे यू हैव अ फॉर्मूला आल्सो. या ओके सो लेट्स से राइट. ओके, ये देखो क्लास, अब जैसे ये वाला देखते हैं पार्ट जिसपे आई विल ब्रिंग माय या स्पॉटलाइट हियर. ये वाला पार्ट देखना, ठीक है, जहां पर एरिथमेटिक मीन के बारे में लिखा है, ठीक है? इस पार्ट को देखना और देखो कि मैं कैसे हमें नोट बनाना है, राइट? सो सपोज आपने क्या किया, आप ये पढ़ रहे हो, एरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स इज टेकन एज फाइनल और एब्सोल्यूट मीन वैल्यू, राइट? या फिर हैव अ लुक एट दिस, यहाँ पर एक और स्टेप पहले यहाँ पर बताया गया है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के बारे में, ठीक है? तो आप क्या पढ़ोगे, देखो ऐसा. Suppose the values obtained in several measurements are A1, A2, A3, A4 and so on, right? Then you will have arithmetic mean of these values is taken as best possible value of the quantity under the given conditions as. ये इतनी सारी थ्योरी दी है, अब हमको ये सब अपनी फॉर्मूला कॉपी में नहीं लिखना है, राइट? हमें फॉर्मूला कॉपी में क्या लिखना है, देखो आपको ऐसा लिखना है, ये आपकी फॉर्मूला कॉपी है, राइट? जब आप ये टॉपिक शुरू करोगे, राइट, ये फॉर्मूला कॉपी है सपोज, जिसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन. तो आपको यहाँ पे लिखना है A1, A2, A3 सो ऑन, ये हमने टर्म्स ले लिए. देन आपको लिखना है A मीन, ऐसा A मीन यहाँ से फॉर्मूला से, राइट? इससे A मीन इज गिवन एज सम ऑफ ऑल द A's, जिसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हो, सिग्मा AI. ये एक तरीका होता है सम डिनोट करने का, ठीक है? या आप चाहो तो इस तरीके से लिख लो A1 प्लस A2 एंड A3 एंड सो ऑन होल अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज. आपने ऐसा लिखा, राइट? फिर उसके बाद अब आपको ये एक एक ये सब चीजें कॉपी नहीं करनी है, राइट? सिंपल है,
I hope you all are clear with what I am trying to say. Then once you're done, let's say right, then इस तरह के statements जो आपके किताबों में इस तरह से दिए जाते हैं, have a look. डार्क वर्ड्स में इसको क्यों किया गया है डार्क, ताकि आप यहाँ ध्यान दें, राइट. सो फोकस हियर. इस तरह की स्टेटमेंट्स में, ऐसी स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, समझो क्या लिखा हुआ है. जैसे द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर. तो अब आपको ये पूरा इसी तरह से कॉपी नहीं करना है, आपको लिखना है अपनी कॉपी में एब्सोल्यूट एरर. ऐसा एब्सोल्यूट एरर, ये आपकी कॉपी में जाएगा, राइट. एब्सोल्यूट एरर. एंड देन यू हैव टू डिफाइन क्या, ये जैसे ये जो भी स्टेटमेंट में लिखा है इसको आप वर्ड्स में कन्वर्ट कीजिए या फॉर्मूला में कन्वर्ट कीजिए. कैसे, देखो. द डिफरेंस ऑफ मतलब इंडिविजुअल वैल्यू, राइट, माइनस ऑफ ट्रू वैल्यू, इनका डिफरेंस. लेकिन कौन सा बड़ा है हमको ये नहीं पता, राइट. ट्रू वैल्यू ऐसा कुछ. तो आप सपोज ऐसा लिख सकते हो वी आई इंडिविजुअल वैल्यू माइनस वी टी ट्रू वैल्यू. फिर आपने इसको एब्सोल्यूट ले लिया, मतलब डिफरेंस. जरूरी नहीं है कौन किससे बड़ा है, वो फर्क नहीं पड़ता, आपको डिफरेंस लेना है, राइट. तो इस तरह से आपने लिख लिया, राइट. अब सपोज क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू नहीं दी है तो आप क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे. देखो यहाँ पर इसने क्या लिखा है, हर वैल्यू के लिए इसने एक्चुअल वैल्यू और मीन वैल्यू का डिफरेंस लिया है और उसको इस डेल्टा ए से रिप्रेजेंट किया है और इस डेल्टा ए को क्या नाम दिया है, एब्सोल्यूट एरर, राइट. इसको पढ़ेंगे हम, अच्छे से पढ़ेंगे. आई एम जस्ट टेलिंग यू एन एग्जांपल कि कैसे नोट्स बनाने हैं, राइट. आई होप दिस एग्जांपल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि आपको जस का तस किसी भी स्टेटमेंट को कॉपी करके नहीं लिखना है, समझना है. ऑफ कोर्स क्लास में जो हम समझेंगे उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो व्हेन यू आर रीडिंग फटाफट समझ में आते जाएगा. बस अपने पास फॉर्मूला अच्छे से फॉर्मूला कॉपी में बनाना है. क्लास जिसको ये बात समझ में आ गई प्लीज रेज योर हैंड. मैंने जो अभी तरीका सिखाया इन ऑर्डर कि कैसे बुक पढ़ते हैं, कैसे नोट्स बनाते हैं, अगर समझ में आ गया सो प्लीज रेज योर हैंड. और कोई कुछ बोलना हो तो उसके लिए आई विल गिव यू टाइम. यस, if you are clear with how to make notes, please raise your hand. All right. I think everybody is clear. Excellent class. Excellent. तो इस तरह से आपको notes बनाने हैं, right? So thank you everyone. You can bring your hands down, right? Right. So yes, Chaitanya, बोलो बच्चा. You can bring your hands down, class. Thank you. Chaitanya, bring. हाँ बच्चा बोलो. Due to some technical issues, I have lost all the data you have given to us in the chat in the group of WhatsApp group. No worries. My phone was कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, आप मुझे मैसेज कर दो. आई सेंड यू द क्लास कोड अगेन, डोंट वरी. ठीक है, ओके. Mahesh has sent me the class code. हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप पर एक बार टेक्स्ट कर देना बच्चा, डोंट वरी. क्लास के बाद आप टेक्स्ट कर देना, आई विल सेंड इट टू यू, डोंट वरी, राइट. ठीक है. हाउ अबाउट कार्तिकेय, यू वांट टू से समथिंग बच्चा? हाँ बच्चा बोलो. यस कार्तिकेय बच्चा पूछो. एनीथिंग? आपका हैंड रेज्ड है इसीलिए आई एम आस्किंग. कार्तिकेय, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क? आपका हैंड रेज्ड है बच्चा. ओके, सो लेट्स प्रोसीड इफ नॉट. ओके, right class, so let's continue. Please give the heading units and measurements. ये आपके units and measurement, please note it down. अब चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है पहले ये समझो, इसको पढ़ाया क्यों जाता है, राइट. सो जब भी आप कभी फिजिक्स में कोई भी आंसर से डील करेंगे, है ना, हमेशा आपको लगेगा कि किसी यूनिट की जरूरत है. जैसे लेट अस टेक एग्जांपल वन बाय वन, है ना. अमीश, मुझे एक बात का जवाब देना, ठीक है. मैं आपसे बोल रहा हूं
दिस इज योर होम इस जगह पे, राइट? नाउ लेट्स से एच, यहां से आप अपने स्कूल जाते हो और आपका स्कूल व्हाटएवर, नाउ आपका स्कूल आपके घर से 6 दूर है। क्या ऐसा कहना सही स्टेटमेंट है क्या? क्लियर हो रहा है क्या मैंने क्या कहा? इससे Sir, क्लियर हो जाता है क्या या कंफ्यूजन क्रिएट होता है? the confusion. ये मतलब क्या लग रहा है, क्या आइडिया होगा? 6 सेंटीमीटर दूर घर है, 6 मीटर दूर घर है, कुछ The किलोमीटर होना चाहिए. किलोमीटर क्या है, सेंटीमीटर क्या है? व्हाट इज अ The सेंटीमीटर, units, they are all units. दे आर ऑल यूनिट्स। क्या पर्पस होता है यहाँ? अगर सपोज तुमने बोला चलो किलोमीटर लगा देते हैं, इससे क्या हो जाएगा बच्चा? व्हाट विल हैपन अगर मैंने यहाँ तो किलोमीटर लगा दिया? कंपेयर करने के लिए कि सब वो 1 किलोमीटर से कंपेयर कर रहे हैं कि उससे कितने टाइम्स ज्यादा दूर है. एक्सीलेंट बच्चा, एक्सीलेंट। देखो तो अब क्लास, अगर हमारे पास एक 6 अगर मैंने लिखा होता तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, राइट? बिकॉज दैट डज नॉट क्वांटिफाई और बेसिकली दैट डज नॉट इज एबल टू गाइड मी कि एक्चुअली घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस कितना है। इसीलिए अच्छा तरीका क्या होता है, उसके साथ आप कुछ लगा दीजिए, कुछ ऐसा जो 6 क्या ये समझने में मदद करे। जैसे अगर मैंने डिफाइन कर लिया कि भाई देखो इस इतने डिस्टेंस को जो अभी मैंने स्क्रीन पर बनाया, दिस इज 1 किलोमीटर, मैंने अगर ये डिसाइड कर लिया तो भाई मुझे समझ में आ जाएगा, अच्छा इसको 1 किलोमीटर बोलते हैं। मतलब अगर मैं ऐसे 6 अलग अलग डैशेस रख दूं, अगर इस एक डैश का मतलब, अगर ये जो एक मैंने डैश बनाया ऑन द बोर्ड, अगर इस एक डैश का मतलब 1 किलोमीटर है, तो अगर ऐसे 6 डैशेस मैं यहाँ पर लगा दूं, राइट, 6 डैशेस लगा दूं तो उसका मतलब 6 किलोमीटर हो जाएगा। वाह, ये तो बड़ी आसान तरीका है। तो यहां से शुरू हुआ यूनिट्स और मेजरमेंट्स का सफर। किसी भी यूनिट, किसी भी क्वांटिटी को बहुत ही अच्छी तरह से समझने के लिए, किसी भी अच्छी क्वांटिटी को अच्छे से समझने के लिए, in order to understand it properly, हमने कहा कि उस क्वांटिटी में हम उसके 2 भाग रखेंगे, पहला उसकी वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट, राइट? एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मैं कहूं आप गाड़ी से जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया डिस्टेंस के लिए। सपोज अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं और आपकी गाड़ी में सामने एक स्पीडोमीटर लगा हुआ है। स्पीडोमीटर क्या करता है? आपकी गाड़ी की स्पीड डिस्प्ले करता है। सपोज दैट स्पीडोमीटर इज डिस्प्लेइंग अ स्पीड ऑफ, कि आपकी गाड़ी इस समय चल रही है लेट्स से रायपुर के रोड्स पे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, राइट? अब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है, राइट? तो उसमें हर जगह 30 किलोमीटर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर ऐसा नहीं लिखा रहता है। हर जगह से 30-20 लिखता है और यहाँ पर साइड में कहीं लिख देता है कि भाई दिस इज नथिंग बट kmph या किलोमीटर पर आवर, राइट? तो ये क्या है? ये बेसिकली आपको बता रहा है कि भाई देखो आपकी गाड़ी की जो स्पीड है उसकी वैल्यू है 30 और उसका जो यूनिट है, जो उसकी वैल्यू है वो है 30, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट? और द नंबर, क्या नंबर आ रहा है, और भाई जो उसका यूनिट है दैट इज किलोमीटर पर आवर। तो देखो स्पीड एक क्वांटिटी थी, स्पीड क्या है? एक क्वांटिटी है, राइट? और उस क्वांटिटी को हमने डिफाइन किया एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की मदद से। अच्छा क्लास, क्या आप लोग इस बात से परिचित हैं कि हम लोग कैसे किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं? उस पर हमारा अगला पॉइंट आने जा रहा है, राइट? सो ये मेक श्योर करना, जो भी मैं लिख रहा हूं ना क्लास में, इसको कहते हैं इलस्ट्रेशन। क्या कहते हैं इसको? इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन मतलब किसी एक पॉइंट को समझाने के लिए आपका फैकल्टी सामने बोर्ड पर क्या कलाकारी कर रहा है, आपको इस कलाकारी को अपनी लेक्चर कॉपी में लिखना है, राइट? क्या होगा उससे? जब आप नेक्स्ट टाइम अपनी लेक्चर कॉपी खोलोगे, जरूरी नहीं है कि आपको ये सब एग्जाम में लिख के आना है, नो, लेकिन जब आप अपनी लेक्चर कॉपी खोलोगे तो आपको रीकैपिंग में हेल्प मिलती है। रीकैपिंग मतलब आपके ब्रेन ने अभी सामने ये सारी इमेज बनते हुए देखी है। साइंस कहता है कि अगर आप ये इमेजेस वापस देखोगे अपने कॉपी में तो बहुत ही क्विकली आप रिकैप कर पाओगे जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, है ना?
तो इसीलिए कहीं रफ कॉपी में लिख लिए, पेज में लिख लिए, ये काम मत करना। अपने लिए एक बहुत अच्छी लेक्चर नोट कॉपी बनाओ जिसमें आप बहुत ही फेयरली अच्छे से जो भी क्लास में चल रहा है सामने उसको अपनी कॉपी में नोट करते जाओगे। इससे फायदा किसका होने वाला है? आपका, ये याद रखो, ठीक है। इट विल हेल्प यू इन रिकैप्चुलेशन और रिवाइजिंग वॉट एवर आई एम राइटिंग ओवर हियर। और इसको क्या कहते हैं? इलस्ट्रेशन। जो भी मैं आपको इलस्ट्रेट कर रहा हूं बाय द मीन्स ऑफ डायग्राम्स, बाय द मीन्स ऑफ चार्ट्स, टेबल्स, राइट, या फिर इस तरह के फ्लो चार्ट्स आपको ये हेल्प करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूइंग बैक, तो हम लोग थे गाड़ी के स्पीडोमीटर पे। चलो हमने स्पीड थोड़ी देर में बढ़ा दी, कितनी कर दी? 36 किलोमीटर पर आवर कर दी स्पीड, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूं कि इस 36 किलोमीटर आवर की स्पीड को किसी और यूनिट में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? लेट्स टेक द आंसर फ्रॉम कुशल। हाँ कुशल बच्चा बोलो। Yes, sir, we can convert it. बोलो कोई और यूनिट बोलो, जैसे Meter per second. Meter per second. मीटर पर सेकंड। तो कुशल कह रहा है कि भाई इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। राहुल से आंसर लेते हैं, सॉरी, राहुल से आंसर लेते हैं। राहुल, ट्राई टेलिंग मी कैसे कन्वर्ट करोगे, फंडा क्या होगा? यस राहुल बच्चा बोलो। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18, ओके, ये आंसर तो बड़ा सही है, लेकिन आया कहां से? इसका जवाब कार्तिकेय से लेते हैं। हाँ कार्तिकेय, सोच के बताओ। सो राहुल का कहना है कि मुझे 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। आई थिंक चैतन्य वांट्स टू स्पीक समथिंग, सो पहले हम कार्तिकेय से पूछते हैं। इन केस नॉट, देन चैतन्य विल से। हाँ कार्तिकेय बच्चा बोलो। Sir, we will multiply 36 into 1000 because for converting kilometers into meters we multiply by 1000, and for converting hours into seconds, hours into minutes, we multiply by 60. So 36 into 1000 divided by 60. थोड़ा सा अब वेरी क्लोज बच्चा। हाँ चैतन्य बच्चा, आपको कुछ बोलना है? बच्चा बोलो। वेरी क्लोज कार्तिकेय। हाँ The same thing I was also saying. ओके, ग्रेट बच्चा। लो देखो, अब हमने अपने सामने लिखा था और ये टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन। यहाँ हेडिंग दो सब लोग, यूनिट कन्वर्जन। एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन मतलब एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। तो हाउ डू यू डू इट? जैसे एग्जाम्पल लो, आपके पास है अभी 36 किलोमीटर पर आवर, राइट। हमने कहा कि 36 किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। तो पहले तो मैं इसको किलोमीटर पर आवर में लिख देता हूँ, ठीक है। बस क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 लिख लेता हूँ, राइट। नाउ अब मुझे पता है क्या कि किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाँ भाई बिल्कुल पता है सर, हम तो 10th पास कर चुके हैं, पता होना ही चाहिए। हमने लिख लिया यहाँ पर। सर देखिए मुझे पता है 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, और सर 1 घंटे में ना 60 मिनट होते हैं, दैट इज 60 मिनट्स। और सर हमें ये भी पता है कि हर मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 into 60 हो गया 3600, तो हो गया 3600 सेकेंड्स। तो सर अब ना हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने यहां तक जो बोला ना उसका हमें जवाब पता है। कैसे पता है मैं पूछूंगा, तो आप बोलोगे सर ये हम क्या कर सकते हैं कि ना 1 किलोमीटर की जगह लिख सकते हैं 1000 मीटर्स, और सर यहाँ पर जहां 1 आवर लिखा था ना आपने, वहां पर क्या लिख सकते हैं? 3600 सेकेंड्स। और जब आप इसको आगे लिखेंगे ना सर, तो हम क्या लिख सकते हैं? 36 इंटू, यहाँ पर हम ये 0 काट लेंगे, ये भी काट लेंगे, तो हो जाएगा 10/36 which is nothing but 5/18। सर आपको पता है जो अभी अभी आपने 5/18 वन ऑफ द स्टूडेंट्स ने जवाब दिया, वो इस तरह से आया था सर। मैं बोलूंगा अरे वाह वेरी गुड। तो आप मतलब बेसिकली समझ गए कि 5/18 से आपने मल्टीप्लाई किया किसको? to a quantity which was expressed in kilometer per hour, to convert it into a quantity which is now expressed in meter per second, right? So you will take 18 ones are, 18 twos are, and write this as 10 meter per second, right? Now
हमने ये कन्वर्जन करना अभी सीखा, राइट? अब इसका दूसरा इंपॉर्टेंस समझते हैं. पहला इंपॉर्टेंस तो था विथ रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग. दूसरा इंपॉर्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू योर जेईई, नीट एंड योर बोर्ड एग्जामिनेशंस जो आप अगले साल देने वाले हैं, 12th बोर्ड, राइट? या फिर जो आपका स्कूल का एग्जामिनेशन है वो भी ले लो, ठीक है? स्कूल एग्जामिनेशन इन क्लास 11. तो क्या होता है, बच्चे ना यूनिट्स को बड़ा लाइटली ले लेते हैं, राइट? जैसे मैं अभी आपसे पूछता हूँ, राइट, वन ऑफ यू, लेट्स सी कि आप इस टेस्ट को पास कर पाते हो क्या, राइट? मैं आप लोगों से एक ट्रिक ले रहा हूँ. सो आई वांट टू नो वन ऑफ यू नाउ. लेट्स से अभी तक जिन्होंने बात नहीं की है, लेट्स टेक एन्या. एन्या, एक बात बताओ. और हाँ एन्या, एक बात बताओ. आपने अपने हाथ में सपोज आपके घर पे मोबाइल है, राइट? सो एक मेरे हाथ में ले लो फॉर एग्जांपल, कोई एक मोबाइल है. इस मोबाइल का या किसी के भी लगभग लेंथ कितनी होती है बच्चा? एवरेज लेंथ सोच के देखो तो. एनी आइडिया? कुछ रफ एस्टिमेट. 15 to 16 centimeters. 15 to 16 सेंटीमीटर्स. ठीक है, बहुत सही. तो इसमें आपने क्या कहा? 15 की बात की, 16 की बात की, और कहा कि सर देखो मेरे पास एक 15 सेंटीमीटर्स की स्केल है. I'll share my video properly. So yeah, just a minute class. Right. So हमारे पास एक 15 सेंटीमीटर्स की स्केल है, एक फोन है, राइट? सो आई एम मेजरिंग इट. सी कितना सटीक जवाब था. देखो एक्चुअली 15, ये एक स्केल है. सी 15 to 16 का डिफरेंस, इनका लगभग मेजरमेंट हो रहा है. तो देखो ये क्या हुआ, मेरे पास एक डिफाइंड मेजरमेंट था कि भाई इसको पता था कि मुझे 15 सेंटीमीटर कहा जाता है. तो जब मैंने अपने फोन को इस पे रखा तो देखा यार सच में यार ये तो 15 सेंटीमीटर ही है लगभग. तो इसका मतलब मेरे फोन का साइज लगभग 15 से 16 सेंटीमीटर हो गया. एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल फ्रॉम Shrish. Yes, Shrish. So Shrish, I would want you to tell us that what is your age? 16. एक बार दोबारा बोलो जोर से. So Sir, अभी ना- 16. अभी एक मिनट बच्चा. देखो तो अभी हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अभी वन ऑफ द स्टूडेंट्स टोल्ड कि सर जो मोबाइल है आपके हाथ में उसकी लगभग लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर्स. हाँ श्रीश बच्चा बोलो, एज है? Sir, 16 years. हाँ देखो जवाब बदल गया. अभी जवाब था 16, अब कितना हो गया? 16 इयर्स. तो यहीं पर अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, ये एज खा जाते हैं. मैं पूछता हूँ भाई आपकी एज बताओ तो बोलेंगे 16, या बोलेंगे सर 15, सर 14. 14 क्या? 14 days, 14 months, 14 years, 14 centuries, क्या? राइट? तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपने बेसिक स्टीरियोटाइप से बाहर निकलें और हमेशा जब भी कोई वैल्यू रिपोर्ट करें तो हमेशा यूनिट्स के साथ करें. आप लोग के स्कूल के एग्जाम्स में हमेशा जब आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और एंड में आंसर रिपोर्ट करते हैं कि भाई मेरा आंसर आया इतना, अगर आपने सिर्फ फिगर लिख दिया ना, अगर मैं आपका टीचर हूं तो मैं आपको इस क्वेश्चन पे कोई मार्क्स नहीं दूंगा. Why? Because at the end of the day आप ये बताने में समर्थ ही नहीं है कि भाई इस चीज का यूनिट क्या है. 16 किलोमीटर है, 16 मीटर्स है, 16 सेंटीमीटर है. यू डोंट नो दिस तो यू डू नॉट डिजर्व एनी मार्क्स ऑन द क्वेश्चन. लेकिन स्कूल वाले जो होते हैं ना वो थोड़े और दयालु होते हैं. वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हम इस पे कुछ मार्क्स रख देंगे कि भाई जैसे अगर क्वेश्चन 5 मार्क का है ना तो हम आपके सिर्फ 3 मार्क देंगे, 2 मार्क काट लेंगे आपसे. तो आपको क्वेश्चन में यूनिट क्योंकि आपने नहीं लिखा है तो हो सकता है 5 में आपको 3 मिल जाए, लेकिन 2 मार्क कट गए, है ना? तो अगर इस चीज को बचाना है तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? यूनिट्स लिखना पड़ेगा. जैसे यूनिट लिखोगे तो टीचर कैसे हो जाएंगी? खुश, और क्या बोलेंगी? वेरी गुड बच्चा, आपने तो यूनिट भी लिखा है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिखी है. राइट. अब आ जाते हैं जेई या नीट जैसे पेपर्स के लिए. ये स्कूल और बोर्ड दोनों में ये चीज अप्लाई होती है. ठीक. अच्छा, नाउ टॉकिंग अबाउट द जेईई एंड द नीट एग्जामिनेशंस, ये आपके जो भी कॉम्पिटिटिव पेपर्स हैं, वहां क्या होता है जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हो वो जानबूझ के नंबर्स के साथ प्ले करते हैं. जैसे आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, लिखो सब लोग क्वेश्चन. एवरीवन राइट अ क्वेश्चन. अ मैन travels 5 kilometers for
for 15 minutes. 15 minutes. Then travels 10 kilometers for next half an hour. Next half hour he travels by 10 kilometers. Suppose the first part of journey is A and second part is B. Report what is the speed of the man in part A and the speed of the man in part B. So let us take this answer from one of you who has not spoken, Veeraj. Yes, Veeraj. Part A. हाँ वीरज बच्चा बोलो. ट्राई करो मेरे साथ ऑन द बोर्ड, नो वरीज, इफ आई एम देयर टू हेल्प. हाँ बच्चा बोलो. Yes, Veeraj. Hello, Veeraj, are you there in the class? हेलो. हाँ वीरज बोलो. यस सर. तो पार्ट 1 में अपन जब स्पीड निकाले, सबसे पहले स्पीड के लिए तो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे क्या? यस सर. हाँ बोलो क्या होता है? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा. आगे क्या करोगे? सर अब क्योंकि ये दोनों की जो यूनिट्स है, टाइम अगर अपन स्पीड निकाल रहे तो या तो किलोमीटर पर आवर में लिख लेगी या तो मीटर पर सेकंड में निकालेंगे. देखो ये तरीका सही है क्या मुझे बताना. मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ 5 किलोमीटर है, यहाँ 15 है और ये लिख देता हूँ मीटर पर सेकेंड. और मुझे कहा गया एसआई यूनिट में जवाब देना है, तो मैं बोलूंगा अरे देखो मतलब मैंने यूनिट लगा दिया, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, 5/15 लिख लिया. अगले बार में 10 है और हाफ एन आवर है तो यहाँ हाफ लिख दिया और यहाँ फिर मीटर पर सेकेंड लिख दिया. क्या ये अप्रोच सही है बच्चा? नहीं सर. क्यों, गलत क्यों है? देखो यहाँ पर लिखता है एसआई यूनिट्स में जवाब दो, मैंने मीटर पर सेकेंड लिखा है और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो भी लिखा है 10 किलोमीटर और यहाँ पर हाफ भी डाला है. क्या गलत है? देखो लिखा तो है हाफ एन आवर, क्या गलती है बताओ? क्योंकि जब अपन 15 मिनट्स और उसको जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यूज अलग आएगी. क्यों कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है? ऐसे नहीं डाल सकते. नहीं सर. क्यों? लिखा तो है यहाँ पे, कन्वर्ट क्यों करना है? लिखा तो है हाफ एन आवर तो हाफ लिख दो और एसआई में आंसर रिपोर्ट करना है तो मीटर पर सेकेंड लिख दो. क्यों गलत है ये अप्रोच बताओ? लिखा तो है कि हाफ है तो वैल्यू है वो अपन को नहीं मिलेगी. फिर से बोलो जोर से, सबको सुनाई देना चाहिए. तो उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो अपन को पता नहीं चलेगी. जो कन्वर्जन होना चाहिए वो नहीं होगा. हाँ क्या कहा अभी वीरज ने, सभी लोगों का ध्यान उस बात पर. क्या कहा वीरज ने? वीरज ने कहा कि सर अगर आपने यूनिट का कन्वर्जन नहीं किया तो आप सही या ट्रू वैल्यू तक नहीं पहुंच सकते. तो अगर आपको सही या ट्रू आंसर तक पहुंचना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप यूनिट कन्वर्जन कीजिए. तो यहाँ पर मैं आपको सभी बच्चों की कमजोरी बता रहा हूँ. अधिकतर बच्चे जो जेई जैसे एग्जाम देने बैठते हैं, राइट, वो भूल जाते हैं कि उन एग्जाम्स को देने के लिए जिन्होंने पेपर बनाया है वो बच्चों की इस कमजोरी को जानते हैं, है ना. तो आपको इसको अपनी कमजोरी नहीं, इसको क्या बनाना है? अपनी ताकत. यू हैव टू मेक इट योर स्ट्रेंथ दैट व्हेनेवर यू हैव टू रीड एनी क्वेश्चन मेक श्योर दैट यू आर मेंटेनिंग अ यूनिट कंसिस्टेंसी. यूनिट कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हर स्टेप में आपको इंश्योर करना है कि आप जो यूनिट्स ले रहे हैं वो कंसिस्टेंट है दोनों साइड्स पर, राइट. जैसे आपको स्पीड निकालनी है मीटर पर सेकेंड में, लेकिन आपने यहाँ पर डिस्टेंस और जो टाइम का यूनिट है वो डाल दिया किलोमीटर और आवर में, तो आपको मीटर पर सेकेंड में स्पीड नहीं आ सकती. तो यहीं पर आप यूनिट कंसिस्टेंसी में मार खा गए. इसीलिए क्लास ये पॉइंट्स नोट करो, राइट इट डाउन, की नोट्स, राइट दिस डाउन एज अ की नोट. ऑलवेज लिखो सब लोग, ऑलवेज मेंटेन यूनिट कंसिस्टेंसी. और अभी आप लोग क्यों इतने सचेत हो? क्योंकि मैं आपको बार बार पूछ रहा हूं, राइट. जब आप एक न्यूमेरिकल बना रहे होते हो ना तब इन सब चीजों से दिमाग अनकॉन्शियसली हट जाता है.
तो जिस बच्चे ने चैप्टर किया है और मेरी क्लास अटेंड की है, उस बच्चे को ये चीज वापस नहीं भूलेगी, उसको याद रहेगा कि अरे सर ने बोला था कि मेरी एज 16 नहीं है, मेरी एज कितनी है, 16 डेज भी नहीं है, 16 मंथ भी नहीं है, कितनी एज है मेरी एज है 16 इयर्स, राइट। एकदम दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि यू हैव टू राइट डाउन यूनिट कंसिस्टेंसी टू बी ऑलवेज देयर, राइट। तो ऑलवेज मेंटेन यूनिट कंसिस्टेंसी while solving numericals। लिखो सब लोग। राइट, अगला पॉइंट, अभी जैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, यहां देखना, अभी हमने कन्वर्ट किया था यहां पर, लेट्स सी, एक मिनट क्लास, सो वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, came to this second point, second page, this was our third page, this was our fourth page। I am sure आप लोग ये मूवी की तरह नहीं देख रहे हैं, you have your copies in front of you and you are noting down things, right? Okay, so अभी हम जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास देखो क्या आया, we have written 36 किलोमीटर पर आवर is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। I am writing this down here, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, एनी वन ऑफ यू, सो लेट्स टेक दिस टाइम माहिवेश। माहिवेश, इज योर माइक्रोफोन वर्किंग करेक्टली टुडे बच्चा? यस सर। ओके, ठीक है बच्चा। देखो, सो द पॉइंट इज, मुझे एक बात बताना माहिवेश, क्या 36 किलोमीटर पर आवर अगर 10 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या 36 मीटर पर सेकेंड भी 10 किलोमीटर पर आवर होगा? I will repeat my question. No, sir. If 36 kilometer per hour is equal to 10 meter per second, does this mean that 10 kilometer per hour is 36 meter per second? Does it mean this? No, sir. No, right? Absolutely not. कहने का मतलब हुआ कि अगर मैं इस क्वांटिटी को फिक्स कर दूं, सपोज n1, और इस क्वांटिटी को भी फिक्स कर दूं, सपोज इसको मैं कहता हूं ये एक यूनिट है, सो लेट्स से दिस यूनिट इज u1, राइट, और ये भी फिक्स कर दूं, सपोज दिस इज u2। मतलब फिक्स करने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन में दे दिया गया कि आपको 36 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू निकालनी है मीटर पर सेकेंड में, जो यूनिट है u2। तो मुझे एक बात बताओ महेवेश, हर बार वैल्यू 10 आएगी कैलकुलेट करने पर, कि हर बार अलग अलग वैल्यू आएगी अगर आप मीटर पर सेकंड में आंसर निकालते हो तो ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर? सर हर बार 10 आएगी। हर बार 10 आएगी, पक्का? यस सर। अच्छा, अगर अब मैं बोलूं कि मीटर पर सेकंड में नहीं निकालकर सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालना है, तो तब कुछ और वैल्यू आएगी क्या, तब भी सेम ही आएगी? सर तब चेंज हो जाएगी। तब चेंज हो जाएगी। एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा, थैंक यू बच्चा। तो देखो अब एवरीवन, हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि n1u1 इज इक्वल टू n2u2। ये आपका अगला कीनोट पॉइंट है। देखो यहाँ पर, राइट डाउन हियर n1u1 इज इक्वल टू n2u2, राइट। तो अब सपोज मैं आपको कहूं प्लॉट अ ग्राफ, क्वेश्चन लिखो, इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है क्या? एनीवन वुड लाइक टू टेल कि n1u1 इज इक्वल टू n2u2 का क्या मतलब है? n और u में कोई रिलेशन बता सकता है क्या, कैसा होना चाहिए? एनीवन, नंबर और उसके यूनिट में? यस, रेज योर हैंड्स इन केस यू वुड लाइक टू टेल दिस। यस चैतन्य बच्चा बोलो। Sir, here we have you have said that n1u1 is equal to n2u2. Sir, we can I'm expecting that relation is that when it is in the form of kilometer and hour, then it will always be equal to the in the form of meter per second. Meter per second will always be means in the conversion their answers will not be changed. वो सही है, बिल्कुल सही है बच्चा। एनीबडी? बिल्कुल सही है बच्चा, बिल्कुल सही। राइट नाउ द क्वेश्चन इज क्लास,
द क्वेश्चन इज कि अगर आपसे मैं कहूं कि आप n और u में ग्राफ प्लॉट कीजिए, n और u में एक ग्राफ प्लॉट कीजिए बाय व्हाट आई हैव गिवन यू, तो कोई अप्रोच लगा सकता है क्या, कोई सोच सकता है क्या कैसे होगा? आई टेल यू द आंसर बट आई वांट यू टू फर्स्ट थिंक। देखो यहाँ पर मैं n प्लॉट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं u प्लॉट कर रहा हूँ। यस बच्चा लोग, एनीवन रेज योर हैंड्स इफ यू कैन फाइंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन n एंड u। उसी तरह से देखो मैं यहाँ पर ऐसा भी लिख सकता हूँ n3 u3, इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू n4 u4। basically it is equivalent to writing 36 kilometer per hour is equal to 10 meter per second, or this is equal to 1000 centimeter per second and so on, right? देखो कंपेयर करो इनको, यहाँ पर इन क्वांटिटीज को देखो, दिस इज 36 n1, दिस इज u1, ये देखो ये क्या है n2, दिस इज u2। क्वांटिटी तो से मतलब अगर आप बात कर रहे हो स्पीड की तो स्पीड तो वही है, लेकिन जैसे ही n बदला u भी कैसा हो गया, बदल गया। ये बात क्लियर हो रही है क्या सबको? जैसे ही n बदला u भी क्या हो गया, बदल गया। हाँ कार्तिकेय बच्चा बोलो। सर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? सोचो सोचो, ठीक है, यू आर क्लोज, कुछ प्रोपोर्शनैलिटी तो है। हाँ आई थिंक तेजस हैड रेज्ड हैंड। हाँ तेजस बच्चा बोलो। So n1 upon n2 is equal to u2 upon u1. बिल्कुल, इस लाइन से तो हम लिख ही सकते हैं n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू u1 अपॉन u2, लेकिन मैं n और u के बीच के जनरल रिलेशन की बात कर रहा हूँ। देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ n इंटू u इज कॉन्स्टेंट। क्या लिख सकता हूँ? n इंटू u इज कॉन्स्टेंट। सपोज वो कॉन्स्टेंट को मैं ले लेता हूँ k, कितना ले लेता हूँ k, इसका क्या मतलब हो गया, या k नॉट। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ तेजस बच्चा, देखो n इज इक्वल टू k नॉट बाई यू, लिख सकता हूँ क्या? हाँ या ना? Yes sir. तो कार्तिकेय एक बात बोलो, अभी हमने लिखा n इज इक्वल टू k नॉट बाई यू, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? इसको मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट रिलेशन या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या कह सकता हूँ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या बात। तो हमने आज क्या बात सीखी कि अगर n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 इज इक्वल टू n3 u3 इस तरह से लिखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि n और u एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर सब लोग अपने पास एक नोट लिख लो, अगला नोट, नंबर एंड इट्स यूनिट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, राइट? अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? लेट अस टेक दिस आंसर फ्रॉम समवन हु इज येट टू स्पीक। लेट मी सी, सो वी हैव वीरज, तेजस, श्रीश, राहुल, आई थिंक सभी ने एक एक बार कुछ ना कुछ कहा है। Let's take anyone then. Let's start from कुशल again. हाँ कुशल, कुशल इसका क्या मतलब है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब है? ट्राई करो, आई एम हियर। हाँ बच्चा। अगर यूनिट बड़ा होगा तो फिर उसकी मैग्नीट्यूड छोटा होगा, इस टाइप का कुछ रिलेशन। एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा। क्लास देखो सब लोग, अगर n बड़ा होने लगे तो u कैसा होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। और ठीक उसी तरह से अगर n छोटा होने लगे तो u कैसा होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा। इसी को कहते हैं इनवर्स रिलेशन, राइट? क्या कहते हैं इसको? इनवर्स रिलेशन, राइट? तो मैं आप लोगों के साथ जब भी क्लास में ऐसे अपवर्ड एरो लिखूं तो इसका मतलब है इंक्रीज, राइट? इन ऑर्डर टू सेव टाइम एंड स्पेस वी आर यूजिंग दिस स्मार्ट टेक्निक कि हम लोग इंक्रीज के लिए अपवर्ड एरो और डिक्रीज के लिए डाउनवर्ड एरो यूज करेंगे। इस तरह के आप चाहो तो अपने आपकी लेक्चर कॉपी में भी आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो कि कोई भी चीज ऊपर की तरफ है मतलब इंक्रीज, नीचे की तरफ है मतलब डिक्रीज। अब क्लास देखना है ना, देखो मुझे क्लास में मुझे बात बताना, ठीक है? आई एम मार्किंग सम पॉइंट्स A, B, C, है ना? तो one by one, so let's take this time Rahul. हाँ राहुल, so Rahul, I want you to tell me पॉइंट A पर n बहुत बड़ा है कि n बहुत छोटा है? तो n बड़ा है। राहुल कह रहा है कि सर n बहुत बड़ा है एट पॉइंट A, ठीक है। u कैसा है वहां पर, देख के बताओ u की कैसी वैल्यू है A पॉइंट पर? बहुत कम है या बहुत ज्यादा है? u की वैल्यू बताना, ठीक है?
तो ये आपने बताया, ये जो मैंने लंबी ग्रीन लाइन खींची, दिस इज टेलिंग मी n वैल्यू, राइट? व्हाट अबाउट u बच्चा, हियर फॉर a? सर यू छोटा है। u छोटा है, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ श्रीश, कि अब अगर हमारे पास a पॉइंट की हमने बात कर ली, b पॉइंट पे क्या फंडा है बच्चा? n कैसा है? यस श्रीश, b पॉइंट पर n का क्या हाल है? वो छोटा है या बड़ा है? बोलो। सर बी पॉइंट पे हाँ b पॉइंट पे, यहाँ सर देखो छोटा है। n छोटा है, राइट? स्मॉल वैल्यू ऑफ n, करेक्ट बच्चा। अच्छा u कैसा है? सर यू भी छोटा है। u भी छोटा है, अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे c पॉइंट के बारे में बताओ, c पॉइंट पे क्या हो रहा है बच्चा? सर सी पॉइंट पे एन छोटा है और यू बड़ा है। n छोटा है c पॉइंट पे और u बहुत बड़ा है। देखो एवरीवन, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? क्या b पॉइंट अगर मैं n इज इक्वल टू k नॉट बाय u का कर्व बनाऊं तो क्या उस पे b लाई करना चाहिए क्या? अगर इस पे दोनों ही छोटे हैं तो हमने अभी भी क्या देखा, अगर एक बड़ा हो तो दूसरा कैसा हो जाना चाहिए? छोटा। इसका मतलब a लाई करेगा, c लाई करेगा, लेकिन b उस पे लाई करेगा क्या, उस कर्व पे? अगर मैं n इज इक्वल टू k नॉट बाय u का कर्व बनाऊं तो बोलो बच्चा, श्रीश। नो सर, नो। राइट, इसका मतलब देखो, अब हम क्या करेंगे, एक कर्व बनाएंगे बिटवीन ए एंड सी, और उसमें b को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो आई ट्राई टू बी अ लिटिल मोर प्रिसाइज, जस्ट अ मिनट। So this is how will be the curve between A and C. ये बना लो, this is the graph which is called inverse relation between n और u, और इस ग्राफ को एक और नाम देते हैं हाइपरबोला। तो ये भी बेसिकली पार्ट हो गया आपके मैथमेटिकल टूल्स का। जब भी कभी आपके पास x और y, आप ऐसे लिखो x y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या आप लिख सकते हो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो इस कर्व को कहते हैं हाइपरबोला। क्या कहते हैं इस कर्व को बच्चा लोग? हाइपरबोला। और यहाँ पर n और u एक दूसरे के साथ कैसे हैं? इन अ हाइपरबोलिक रिलेशनशिप, तो इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक रिलेशनशिप। लिख लो सब लोग अपने पास और ग्राफ बना लो, और जैसे ही इस पेज पर जो भी लिखा है, जैसे आपने वो कॉपी में लिख लिया, हैंड रेज करो सो दैट आई विल नो दैट यू आर डन। यस यस क्लास, वंस यू आर डन राइटिंग क्विकली। हाँ बच्चा बोलो। सर डाउट है। अच्छा, ऑल्सो वेन एवर यू आर आस्किंग डाउट, आपको अपना नाम बोलना है। हाँ बच्चा बोलो कार्तिक। सर हमने बी को ही एक्सक्लूड क्यों कर दिया, मतलब किसको एक्सक्लूड किया बच्चा? बी को। क्योंकि देखो बी एक पॉइंट है जिस पर n भी छोटा है और u भी कैसा है, बताओ बोलो बच्चा। ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों इक्वल लेंथ, चाहे इक्वल हो या अनइक्वल हो, दोनों कैसे हैं? बहुत छोटे छोटे। लेकिन अगर कर्व पे लाई करना है और n बड़ा है तो u को कैसा आना पड़ेगा? बड़ा या छोटा? बड़ा। अरे अगर n बड़ा है तो u को कैसा होना पड़ेगा? तो u को छोटा होना पड़ेगा। हाँ, और उसी तरह से n छोटा है तो u को कैसा होना पड़ेगा? बड़ा। बड़ा। तो क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बी? यस सर। नो सर, राइट। कहाँ कर रहा है आप? क्या बोल रहे हो? फिर सर ए और सी कर रहा है, बी नहीं कर रहा है। हड़बड़ी मत करो, ध्यान से सोचो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल पूछा कि अगर, मैंने आपको एक बात बताई कि अगर, देखो ये तरीका है, ये कोई ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कि ऐसा ही होता है। मैं आप लोगों के लिए चीजों को आसान बनाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि देखो, अगर आपको n और u का एक ग्राफ प्लॉट करना है, राइट, और आपको नहीं पता कि वो ग्राफ कैसा होगा, तो मैंने आपको समझाया कि अलग अलग पॉइंट्स मार्क कर लो ग्राफ पे, ये समझने के लिए कि वहां पर ये ग्राफ उस पॉइंट से पास करेगा कि नहीं। तो हमने पॉइंट बी जो है वो देखा कि पॉइंट बी पर क्या हो रहा है। पॉइंट बी पर अगर n छोटा है तो u भी छोटा है, और अगर वो और ऐसा कोई पॉइंट इस कर्व पे लाए नहीं कर सकता। हाँ या ना? अब क्लियर हो रही है बात? क्योंकि कर्व Yes, पर sir. लाई करने के लिए अगर n बड़ा है तो u छोटा होगा और u बड़ा है तो n छोटा होगा। सिंपल सी बात है। क्लियर हो रही है कि नहीं बच्चा?
Yes, sir. Yes. चलो ठीक है बच्चा, थैंक। ओके बच्चा, सभी लोग सर, जैसे तो एक डाउट था। एक मिनट बच्चा, तो क्लास इसको सब लोग पहले लिख लो और हैंड रेस करो क्विकली, जैसे ही लिख लो, राइट। पहले राहुल लिख लो, एवरीबॉडी राइट इट डाउन फर्स्ट। अच्छा राहुल, इस डाउट को प्लीज अपने पास मार्क करो, आप मुझसे क्लास के एंड में पूछिए, बिकॉज देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। प्लीज मार्क दिस डाउट in the form of a symbol in your lecture note. We'll come to your queries. Before that, I want to complete something really important for all of you, right? तो क्लास आप लोग याद करना, हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या, अबाउट अलग अलग तरह के यूनिट्स फॉर एंगल मेजरमेंट। क्लास आप लोगों में से जिसको भी जो भी डाउट्स हो प्लीज अपने पास मार्क करके रखो, एंड यू कैन पुट योर हैंड्स डाउन नाउ। थैंक यू, राइट। So put your hands down now. You can ask the doubts once I finish the explanation, right? So we'll do this class. अब ना यूनिट को मेजर करने के लिए आप लोगों ने अलग अलग तरह की चीजें पढ़ी है, राइट? तो सबसे पहले टुडे आई एम टेलिंग यू ऑल कि आपके पास ना वी आर स्टडीइंग अबाउट टू टाइप ऑफ यूनिट्स, राइट? टू टाइप ऑफ यूनिट्स. First are called as fundamental units. Fundamental units तीन प्रकार के होते हैं. One is length, the other is mass, and the third is time. ये ऐसे यूनिट्स कहे जाते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग पर आप बाकी सब यूनिट्स लिख सकते हैं, या अधिकतर यूनिट्स लिख सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? सो दीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स. फंडामेंटल्स हैं ये यूनिट्स के, राइट? देन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड एज बेस यूनिट्स. बेस यूनिट्स, in fact to be very precise, तीन आप लोग हम पढ़ रहे हैं 7 तरह के बेस यूनिट्स. एवरीबॉडी राइट देम डाउन. 7 तरह के और 7 टाइप्स ऑफ बेस यूनिट्स. यू हैव 7 टाइप्स ऑफ बेस यूनिट्स, राइट? द फर्स्ट इज अगेन सेम, लेंथ, मास एंड टाइम. लिख लो सब लोग, लेंथ, मास एंड टाइम. और प्लीज अपने जो डाउट्स हैं उसको अपने लेक्चर नोट्स में सिंबल के फॉर्म में लिख लो. जैसे पूरा डाउट लिखने की जरूरत नहीं है, इन अ वर्ड लिख लो किसी अलग कलर की पेंसिल से, ताकि जब क्लास एंड हो तो आप मुझसे वो पूछ सको, राइट? ओके क्लास. सो लेंथ, मास एंड टाइम. अगला है इलेक्ट्रिक करंट. लिखो सब लोग, इलेक्ट्रिक करंट. फिर अगला है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. यहाँ थर्मोडायनेमिक वर्ड देख के डरना मत. थर्मोडायनेमिक इज जस्ट, थर्मो मतलब हीट, डायनेमिक मतलब मोशन. I'll repeat, just a minute. Electric current. Next one is thermodynamic temperature. So थर्मो शब्द का मतलब होता है हीट, डायनेमिक शब्द का मतलब होता है मूवमेंट. तो हीट की मूवमेंट के वजह से हम टेम्परेचर देख पाते हैं. इसी वजह से आप टेम्परेचर को थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी कहते हैं. वो वही टेम्परेचर है जो आप अपना मेजर करते हैं. जैसे आपकी बॉडीज का नॉर्मल टेम्परेचर इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, कुछ वैसा ही, राइट? अगला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये रोशनी या फिर लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने वाला एक यूनिट है. काफी कम यूज होता है आजकल, बट देन यस, this is also one of the base units, right? और इनफैक्ट ये यूनिट से ज्यादा बेस क्वांटिटीज हैं. ये जो भी हैं क्वांटिटीज हैं, इनके यूनिट्स कहलाते हैं बेस यूनिट्स. जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट मीटर, यहाँ पे वी विल बी टॉकिंग अबाउट केजी, यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड. इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, राइट? आई थिंक आप लोगों ने क्लास 9th-10th में इसका इंट्रोडक्शन देखा है. टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? देन आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी. इसके लिए यूनिट होता है कैंडेला, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सीडी से.
and this is called as candela, and this is Kelvin, right? This is ampere, right? This is second. फुल फॉर्म जरूर लिखेंगे सब लोग अपने पास, राइट? दिस इज किलोग्राम, दिस इज मास. देन यू हैव लास्ट और सेवेंथ यूनिट इज, seventh quantity is in fact amount. So meter. Okay, right. Thank you. So this one is meter, right? Thank you very much. Thanks. So यहाँ देखेंगे सब लोग next, and in fact the spelling is METRE, right? Okay. Amount is mole. इसको यूनिट को लिखा जाता है MOL, right? And its actual like इसे रिप्रेजेंट किया जाता है MOL से, and इसकी actual spelling is MOLE. लिख लो सभी लोग first of all quickly. Acha, once you have written different kind of base and fundamental units, there is something called as supplementary units. There is something called as supplementary units. लिखो. There are two types of supplementary units. पहला है रेडियन, पहला है रेडियन जिसमें आप थोड़ा सा कुछ जान चुके हो पहले से, राइट? अगला है स्टेरेडियन, STERADIAN. इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है? सो एवरीवन मेक अ टेबल कंटेनिंग 2 कॉलम्स, ठीक है? अब इसकी हेडिंग दो, एक तरफ लिखो रेडियन और दूसरे तरफ लिखो स्टेरेडियन. राइट? क्या होता है रेडियन? रेडियन इज वन ऑफ द यूनिट्स जिससे आप किसी 2 डायमेंशनल प्लेन में, मतलब एक ऐसा प्लेन जिसमें एक y एक्सिस है और दूसरा x एक्सिस है, क्या मेजर करते हैं? एंगल, राइट? सो दिस इज एंगल को मेजर करने का यूनिट्स इन 2 डायमेंशन, राइट? जबकि व्हाट अबाउट स्टेरेडियन? स्टेरेडियन इज अ यूनिट जिससे आप एक एंगल को मेजर करते हैं 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में, जहां पर x है, y है और z एक्सिस भी है. आई रिपीट, radian is used to measure angle in 2-dimensional world, जबकि steradian is used to measure angle in a 3-dimensional world. In a 3-dimensional world. अगला पॉइंट, राइट? अगला पॉइंट इज दैट अगर आपको रेडियन को मेजर करना है, राइट, तो हम इस तरह से मेजर करते हैं. देखो, अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, इस सर्कल में हम ऐसे एक सेक्टर बनाते हैं जिसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल, जो अभी हमने बनाया है यहाँ पर, ठीक है? अब इस सेक्टर में ये जो है जिसको मैं डार्कन कर रहा हूँ, लेट मी टेक मे बी ब्लू इंक फॉर दिस. सो दिस ब्लू इंक इज कॉल्ड एज आर्क ऑफ अ सर्कल. क्या बोलते हैं इसको? आर्क ऑफ अ सर्कल. तो सपोज आर्क लेंथ, आर्क की जो लेंथ है ये, दिस इज S, राइट? एंड this is the radius of the circle, right? Then angle in radian is given as, ये angle जो theta है, right, इसकी वैल्यू होती है S by R. क्या होती है? S by R, right? Now अगर उसी तरह से अगर मैं एक सर्कल को 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में ले जाऊं,
तो सर्कल का एक 3 डायमेंशनल पिक्चर क्या बनता है बोलो, एनीवन, एक गेस लो. सो आई टेक चूज वन ऑफ यू, लेट्स से Sphere. हाँ, Here. so I got one answer as sphere. सर्कल का 3 डायमेंशनल एवतार इज अ स्फीयर. तो जैसे अभी हमने रेडियन के बारे में बात की यूजिंग अ सर्कल, उसी तरह से हम बात करते हैं स्टेरेडियन की यूजिंग अ स्फीयर. तो सपोज ये स्फीयर है, ठीक है. स्फीयर का एक छोटा सा हमने हिस्सा लिया और इसके जरिए एक ऐसा कोन बनाया. क्या बनाया? कोन बनाया, और इस कोन को सेंट्रल पॉइंट से जोड़ दिया. देखो कैसा इसका मतलब हुआ. अगर मैं बहुत सारे ऐसे कोन बनाते जाऊं, देखना ध्यान से, ठीक है, इसको विजुअलाइज करना अपने पास. ऐसे बहुत सारे कोन्स बनाते जाऊं, ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर एक कोन आपकी तरफ स्क्रीन के बाहर आता हुआ, फिर ये ऐसे कोन्स बनाते जाऊं, तो क्या बन जाएगा? सर्कल. ठीक उसी तरह से जैसे अगर मैं बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जोड़ते जाऊं, ये ऐसे सेक्टर्स जोड़ते जाऊं, तो क्या बन जाएगा? एक पूरी तरह से सर्कल बन जाएगा, राइट. तो जैसे सेक्टर्स को जोड़ने से, जैसे सेक्टर्स को जोड़ने से, एक किसी सेंट्रल पॉइंट से जोड़ने से एक सर्कल बनता है, ठीक वैसे ही अगर बहुत सारे कोन्स को जोड़ दो, क्या कहा मैंने? बहुत सारे कोन्स को जोड़ दो एक दूसरे से विद देयर एपेक्स. एपेक्स का मतलब उनके एंड पॉइंट से अगर आप जोड़ दो काफी सारे कोन्स को, तो जो आपके पास बनता है उसको मैं बोलता हूँ स्फीयर. क्या बोलता हूँ? स्फीयर. तो दैट स्फीयर इज नथिंग बट a 3D avatar of a 3D avatar of a cone. इसका मतलब जैसे सेक्टर एग्जिस्ट करता है 2D वर्ल्ड में, ध्यान से सुनना, सेक्टर जैसे एग्जिस्ट करता है एक 2D वर्ल्ड में, एक कोन एग्जिस्ट करता है 3D वर्ल्ड में. कोन किस में एग्जिस्ट करता है? 3D वर्ल्ड में. तो जैसे देखो एक यहाँ इस सेक्टर में ध्यान देना, इस सेक्टर में जैसे ये एंगल मेजर कर रहे हैं और इसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं रेडियन में, वैसे ही अगर 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में आप एक कोन के अंदर एंगल मेजर करते हैं, तो हम उसको रिपोर्ट करते हैं स्टेरेडियन में, राइट. एक कोन के 3D एंगल को जब हम मेजर करते हैं तो उसको रिपोर्ट किया जाता है स्टेरेडियन में, राइट. और उसका फॉर्मूला ये होता है, ध्यान से देखना, जैसे थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ, राइट, अपॉन रेडियस. थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, वेयर थीटा इज एंगल इन रेडियंस, वेयर थीटा इज एंगल इन रेडियंस. ठीक उसी तरह से वी हैव एंगल स्टेरेडियन में, अगर मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं ओमेगा से. तो क्लास याद करो, आप लोगों को मैंने शुरुआत में लिखाया था लिस्ट ऑफ डिफरेंट सिंबल्स, याद होगा. तो इसको कहते हैं ओमेगा. ये सिंबल जैसे इसको हम थीटा कहते हैं ना, इस सिंबल को कहते हैं ओमेगा. क्या कहते हैं? ओमेगा, राइट. ये ओमेगा यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है अगर एंगल इन स्टेरेडियन, then the angle in steradian is given by surface area. देखना मैं क्या लिख रहा हूं, surface area. किसका surface area? ये कोन का, जिसको मैंने ब्लैक शेड किया है यहाँ पर. ये surface area of the base, right? Surface area of the base of the cone whole by radius का square. क्या कहा है मैंने? रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर. ध्यान से देखना, सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ द कोन. सो दिस इज सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ द कोन. कौन सा कोन? एक ऐसा कोन जिससे स्फीयर बन रहा है, राइट, जिससे स्फीयर बन रहा है. तो अब क्लास मुझे कोई एक इसके लिए हैंड रेस करना, या फिर आई चूज वन ऑफ यू. अमीश एक बात बताओ, अगर है ना, अगर इसके बाद लेट्स टेक आंसर फ्रॉम तेजस, ठीक है. तो अमीश एक बात बताओ, अगर आप पूरे एक सर्कल, एक स्फीयर का सरफेस एरिया जानना चाहोगे, जानते हो क्या कितना होता है एक स्फीयर का सरफेस एरिया? यस अमीश, 4 पाई आर स्क्वायर. जोर से बोलो फिर से. The 4 pi r square. 4 pi r square is the surface area of a sphere. ठीक है. अच्छा, अब तेजस ये बताओ, अगर मैं इस 4 pi r square को किससे डिवाइड कर दूं? r square से. किससे डिवाइड कर दूं तेजस?
r स्क्वायर से। R आंसर क्या आएगा बोलो तो? 4 pi 4 पाई। अच्छा ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या था तेजस? area of sphere. टोटल एरिया ऑफ स्फीयर या फिर उसके एक छोटे से पार्ट का एरिया? Total area. टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तेजस कि ये कौन सा एंगल दे रहा है, दिस इज गिविंग मी व्हाट काइंड ऑफ एंगल, दिस इज गिविंग मी टोटल एंगल ऑफ अ स्फीयर या उसका कुछ पार्ट दे रहा है? हाँ तेजस बोलो। अगर ये टोटल, हाँ हाँ बोलो 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 बच्चा। Total angle. टोटल एंगल ऑफ व्हाट? ऑफ Sphere. स्फीयर। और इसका यूनिट क्या होना चाहिए? 4 पाई रेडियन या स्टेरेडियन? Steradian. स्टेरेडियन। एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा। ओके एन्या नेक्स्ट जवाब देना कि हमारे पास अभी हम अगर सर्कल की बात कर रहे थे तो एक सर्कल में टोटल एंगल कितना होना चाहिए वो निकालने का तरीका इसी तरीके से कैसे करोगे जैसे अभी मैंने क्या किया, अभी हमने यहाँ पर सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर किया। यहाँ पे अगर मुझे टोटल एंगल इन थीटा निकालना है, ये थीटा निकालना है, अभी मैंने ओमेगा निकाला कैसे? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर किया हमने तो हमारे पास एंगल आया 4 पाई स्टेरेडियन, दैट इज द टोटल एंगल ऑफ अ स्फीयर। दिस इज टोटल एंगल ऑफ अ स्फीयर। तो एन्या ये जवाब दो कि थीटा निकालना है तो मैं टोटल आर्क न लेके क्या करूंगा, पूरे सर्कल का क्या ले लूंगा बोलो? सरकमफ्रेंस। हाँ या ना एन्या? यस सर। राइट। तो सर्कल का टोटल सरकमफ्रेंस कितना होता है बताओ? 2 pi r। 2 पाई आर अपॉन आर करो, कितना आंसर आएगा बोलो? 2 pi। 2 पाई। ये 2 पाई क्या है, रेडियन या स्टेरेडियन? रेडियन। रेडियन। एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चा। और बच्चा ये क्या कहलाएगा, टोटल एंगल ऑफ अ सर्कल या टोटल एंगल ऑफ अ स्फीयर? टोटल एंगल ऑफ अ सर्कल। एब्सोल्युटली करेक्ट। लिख लो सभी लोग इसको अपने पास क्विकली, everybody jot it down and please mark your doubts, I'll take them first. Please note this information. Yes, whatever is written on the board please jot it down, right? And once you are done raise your hand. Yes बच्चा, जो मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं ये हो सकता है आपको किसी किताब में किसी नोट्स में कहीं ना मिले, इसलिए अच्छे से नोट्स बनाओ जब भी मैं क्लास में कुछ समझा रहा हूं, ठीक है? Once you are done writing with whatever is written on the board, raise your hand. Yes, I'm waiting class. और अपने हैंड को रेज्ड ही रखना, ठीक है? Once you are done writing with whatever is written on the board, raise your hand. Yes, so I think some of you have already raised. Let me check. Okay, all right. Kushal, बच्चा हो गया क्या? In case yes, please raise your hand, बच्चा. Once you are done, yes. So 1 minute. हाँ हाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो. All right, Kushal. Everyone may bring their hands down. Thank you. Right. So, class, I hope everyone is very clear with whatever we have read until now.
In case you have any doubts, please keep them, put a circle, keep them ready. I'm telling you something really important now. Next, concentrate and take a note. Please mark your doubts. I take the doubts together. ठीक है? Now I am introducing you all to a very beautiful word. It's called dimension. Why beautiful? Because ये कुछ ऐसा है जिसमें सारे यूनिट्स समा जाते हैं, सारे यूनिट्स इसके तरीके से एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। डायमेंशन क्या होता है, राइट? तो मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया 3 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, लेंथ, मास एंड टाइम, राइट? तो अगर आपने किसी भी यूनिट को, राइट, इफ यू कैन एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी, इफ लिखना अपने पास, everyone, if we express any quantity in terms of length, mass and time, in terms of length, mass and time, the powers of each L, M and T are called dimensions. मैं रिपीट करता हूं डेफिनेशन. इफ वी एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, द पावर्स ऑफ ईच ऑफ देम, दैट इज लेंथ, मास एंड टाइम के पावर क्या कहलाते हैं? डायमेंशंस. एग्जांपल देखो. सो सपोज हमारे पास अगर एक क्वांटिटी है, लेट्स से स्पीड, ठीक है, एक क्वांटिटी है लेट्स से स्पीड, तो स्पीड के लिए यूनिट लिखोगे सबसे पहले, या उसका फॉर्मूला लिखोगे जो भी आपको आसानी से रिकॉल हो सकता है. यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड. इससे मुझे याद आएगा फॉर्मूला क्या है? लेंथ बाय टाइम, लेंथ अपॉन टाइम. अब डायमेंशन में ना हम क्या करते हैं? लेंथ, मास और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर्स L, M एंड T. तो देखो, आई विल रिप्रेजेंट लेंथ बाय L एंड टाइम बाय T, राइट? अब एक चैप्टर होता है जो आपको 8th 9th में पढ़ाया जाता है शायद, इंडाइसेस. उसका मतलब होता है इंडेक्स के रूल्स. जैसे उसमें आप कुछ पढ़ते हैं इंडेक्स के रूल्स, जैसे अगर आप लिखते हो कुछ रूल्स है, बेसिक रूल्स है, लिख लो बेसिक रूल्स जो आपको हेल्प करेंगे डायमेंशंस के साथ डील करने में. ये क्लास 9th 10th का रिवीजन है, ठीक है? बेसिक रूल्स ऑफ इंडाइसेस क्या क्या हैं? अगर a पावर x और a पावर y, मतलब जब बेसिस, इसको कहते हैं बेस. जब भी मैं लिख रहा हूं, देखना ध्यान से क्लास, अगर मैं a पावर x लिख रहा हूं तो इसको कहते हैं इंडेक्स, और इसका प्लूरल होता है इंडाइसेस, राइट? और ये कहलाता है बेस, राइट? और इसी इंडाइस को या इंडेक्स को आप पावर भी कहते हैं, ठीक है? अब रूल्स देखो क्या क्या होते हैं. पहला, x, a power x into a power y is given as a power x plus y. अगला is a power x by a power y is a power x minus y, right? तीसरा is, अगर आपके पास, आई थिंक ये 2 रूल्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद होने चाहिए. और भी हैं बट देन अभी उनका काम नहीं है, सो आई एम रिमूविंग दिस, राइट? अब ये 2 याद रखोगे आप जो आपको हेल्प करेंगे आपको, राइट? सो देखना आप इसको अप्लाई करते हैं. देखो टी नीचे है, राइट? बेसिक रूल्स ये कहाँ यूज होते हैं? ये बेसिकली आपके एल्जेब्रा में यूज होते हैं. इफ यू कैन रिकॉल, यू यूज दिस इन योर एल्जेब्रा, राइट? अब देखना L by T लिखा है, ठीक है? सो you can write L into T power -1. क्यों? क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ 1 by A एग्जाम्पल के लिए, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? A पावर -1. अगर मैं लिखता हूँ 1 by A स्क्वायर, तो उसको क्या लिख सकता हूँ? A पावर -2 एंड सो ऑन, ठीक? अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक क्वांटिटी का, लेट्स से एक्सेलरेशन, ठीक है? तो अब मुझे क्या बताया गया है कि भाई एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर.
उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है, तो या स्पीड बाय टाइम अभी के लिए सपोज, ठीक। तो यहां से डायरेक्टली देख लो, ऊपर आ रहा है मीटर, यूनिट किसका है, लेंथ का, नीचे क्या आ रहा है, सेकेंड स्क्वायर, यूनिट किसका है, टाइम का, सेकेंड स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया नीचे टाइम स्क्वायर। इसको कैसा लिख सकते हो, देखो L इंटू टी पावर -2। क्या यहाँ पर m आ रहा है ऊपर वाले फॉर्मूला में, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, यहाँ क्या m आ रहा है, यहाँ भी m नहीं आ रहा है। तो अगर दोनों जगह m नहीं आ रहा है तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ m टू द पावर ऑफ 0। क्या लिख सकता हूँ, m टू द पावर ऑफ 0। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आपसे कहा जाए कि स्पीड का डायमेंशन बताइए, तो स्पीड का डायमेंशन हो जाएगा m पावर 0 l पावर 1 t पावर -1। मैं कहूंगा एक्सेलरेशन का बच्चा आप मुझे बताओ कि डायमेंशन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर डायमेंशन होता है l पावर 0 l पावर 1 t पावर -2, राइट। ये सब तो आप समझते हो, करेक्ट। देखो क्लास ध्यान से, क्या कि वंस यू राइट ऑल ऑफ दिस, जब आपने ये सब लिखा तब आपने डायमेंशन को क्या कहा, क्या डायमेंशंस हैं, ये पावर, देखो m का पावर, l का पावर, t का पावर, इनको आप कहते हो डायमेंशंस। तो मैं अगर आपसे पूछ लूं व्हाट इज योर डायमेंशन ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू मास, तो आप कहोगे सर डायमेंशन ऑफ स्पीड, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, ठीक है, आई एम राइटिंग इट डाउन आल्सो हियर। What do you say? You say that the example is the dimension of speed with respect to mass is m, is 1, right? With respect to length is again, sorry, with respect to mass is 0, with respect to length is 1, so this is 0, ठीक है। Now with respect to length is 1, with respect to dimension with respect to same है ना, dimension with respect to time is -1 है ना। तो ये पावर्स आपको डिनोट कर रहे हैं डायमेंशन, so these are called as dimensions, राइट। तो अब ऐसी कुछ क्वांटिटीज हैं, राइट, जिनके आपको डायमेंशंस याद करने हैं। तो ये चैप्टर जो है ना बच्चा, ये चैप्टर एक तरह का मूवी की स्टार्टिंग है, 11th 12th ऐसा मान के चलो एक मूवी है, ठीक है, और उसकी स्टार्टिंग में एक चैप्टर है। तो जैसे मूवी में कुछ सस्पेंस क्रिएट किया जाता है ना, वैसे इस चैप्टर में आपको कुछ सस्पेंस मिलेगा, इसमें कुछ ऐसी क्वांटिटीज मिलेगी जिसके बारे में ना आपने आज तक कभी पढ़ा है ना सुना है। क्यों? क्योंकि आप उनके बारे में पढ़ोगे और सुनोगे कब, मूवी में क्या शुरू में ही सारा सस्पेंस ओपन हो जाता है, नहीं, मूवी के एंड में सस्पेंस ओपन होता है। तो जैसे मैं आपको पहले ही उसकी एक झलक दे रहा हूं, तो आपको कुछ ऐसे क्वांटिटीज आएगी जैसे स्ट्रेस या फिर टॉर्क, तो इनको देख के डर मत जाना, समझना कि ये सस्पेंस है, कब खुलेगा, जब मूवी आगे बढ़ेगी। तो कहीं ऐसे यूनिट्स आए तो ऐसे यूनिट्स का अभी डायमेंशन सिर्फ ऐसे ही याद कर लो, इनिशियली just learn the dimensions, right? I'll give you a sheet, मैं आप लोगों को एक शीट भेजूंगा ग्रुप पे जिसमें अलग अलग क्वांटिटीज का डायमेंशंस हैं, जिसका डायमेंशन डिराइव कर सकते हो डिराइव कर लेना, राइट, जो फॉर्मूला पता है उससे। अगर नहीं कर सकते, राइट, अगर नहीं कर सकते तो you have two ways, either you can derive them, right, or you can learn them for now, अभी के लिए जस्ट उनको लर्न करो, क्योंकि हो सकता है स्कूल के एग्जाम में वो पूछा जाए, राइट, लर्न फॉर नाउ। अब समझ में कब आएगा, you will understand these quantities when we are actually reading those chapters जहां पे quantities का यूज हुआ है। एग्जाम्पल के लिए जैसे जब आप पढ़ोगे टॉर्क, तो ये एक ऐसा वर्ड है जो हर कोई नहीं जानता, कुछ बोर्ड्स में पढ़ाया जाता है, कुछ में नहीं होता है। ये आप पढ़ोगे when we are reading the chapter rotational motion, right? So in the chapter rotational motion आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझेंगे, राइट, सो वील कंसिडर इट ओवर देयर, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, अच्छा सर टॉर्क का तो ये डायमेंशन होता है, आप खुद ही बोल दोगे उसका फॉर्मूला देख के, ठीक है। तो अभी कुछ टर्म्स आएंगे जिनकी क्वांटिटीज को देख के डरना मत, इसको एक मूवी की स्टार्टिंग की तरह देखना जहाँ सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। और आपको जो मैं शीट दूंगा उसमें आपके अराउंड
37 डायमेंशन, 37 क्वांटिटीज और उनके डायमेंशन होंगे, ठीक है। तो अब आप ये मत सोचना कि सर 37 कैसे करेंगे। आपके पास हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 days in a week। आप हर दिन 5 याद कीजिए, 5 in the morning याद कीजिए, राइट, एंड इवनिंग में उसको रिवाइज कीजिए। 5 in the morning याद कीजिए, इवनिंग में उसको रिवाइज करो। मैं आपको अगले दिन पूछ सकता हूँ ये पहले 5 डायमेंशन में बताओ इस क्वांटिटी का डायमेंशन कितना है, तो तेजी से जवाब आना चाहिए। 7 दिन के अंदर अंदर यू विल बी डन विद 35 क्वांटिटीज। एक दिन में कहीं 2 एक्स्ट्रा कर लेना तो आपके पास 37 हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है सबको कि अपने बड़े से टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, द टास्क विल बिकम इजी, राइट। राइट इट डाउन, वट एवर आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, इसको लिख लो कि आपको डायमेंशंस याद करने हैं, राइट। जो इजी हो उसको डिराइव कर लेना है। फॉर्मूला अगर पता हो तो इफ फॉर्मूला नोन, फॉर्मूला अभी नहीं पता हो, राइट, तो अभी के लिए उसको याद कर लो। आने वाले चैप्टर्स में वो क्वांटिटीज पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएंगे, राइट। क्लियर है। उसके बाद अगला पॉइंट इज आने वाले 7 दिनों में हर दिन 5 क्वांटिटीज का डायमेंशन याद करना है, जिससे आने वाले एक हफ्ते में आप सारे डायमेंशन याद कर चुके होगे, राइट। तो आने वाली क्लास में, दैट इज ऑन मंडे की प्रैक्टिस क्लास में, हमने आज जो भी पढ़ा है इसके बेसिस पे हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा कुछ और समझेंगे ताकि हम इस चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट कर सकें। ठीक है बच्चा लोग, ओके। नाउ आई ओपन द क्लास फॉर आस्किंग योर क्वेरीज। यस बच्चा लोग, तो अब जिनको जिनको क्वेरीज हो वो हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यस क्लास, इन नेक्स्ट 1 मिनट, और आप लोग चाहो तो इन क्वेरीज को आपके नेक्स्ट क्लास में भी शुरुआत में पूछ सकते हो। करेक्ट, लिख लिया है? पहले मुझे बताओ, सबने लिख लिया? होमवर्क क्या है आज का कि हर दिन 5 डायमेंशंस याद करने हैं, राइट। एक पेपर में इनको लिखना 5 डायमेंशंस को, सुबह एक बार, शाम में एक बार। तो आपके कम से कम 2 बार लिखे होने चाहिए एक पेज पर, और शाम को 7 बजे आपको ये अपलोड कर देना है ऑन द गूगल क्लासरूम। ठीक है बच्चा, everyone clear? Every day in the evening at 7 PM you have to upload written page। वो एक पेज का स्कैन करके आपको भेजना है, और आपकी फॉर्मूला कॉपी आप कितना अपडेट कर चुके हो वो तो हर रोज भेजना ही है, राइट। तो फॉर्मूला कॉपी में आज जो भी आपने पढ़ा है इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट लगे अपने फॉर्मूला कॉपी में डालना और उसको लिख लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ, फॉर एग्जाम्पल n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, राइट। तो ऐसे कुछ भी इंपॉर्टेंट लगा हो, जैसे स्टेरेडियन और रेडियन के बीच के डिफरेंसेस, तो ऐसी चीजों को अपने पास लिख लेना, और कहीं कोई डाउट आए तो मुझसे मंडे को पूछ लेना। नाउ आई ओपन द क्लास फॉर डिस्कशंस, और अगर अभी डाउट्स नहीं पूछना चाहते हो तो यू कैन आस्क ऑन मंडे। थैंक यू वेरी मच क्लास। यस, so please raise your hands if in case you want to ask anything, or else we can continue this on Monday. Yes, we'll start from, I think some of you have raised hands. Let's see. Okay, Tejas has raised. हाँ तेजस बच्चा बोल। सर वो ग्राफ वाली स्लाइड पे जाओ ना। अच्छा ओके, दोबारा नोट करना है, 1 मिनट बच्चा। ठीक है, यस सर। ओके। किसी का कुछ और छूट गया हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ब्रिंग योर पेज टू दैट स्लाइड, नो वरीज। So just a minute बच्चा लोग, 1 मिनट। I'll start from the first slide. This was your first slide, right? This was your second. This was your third slide. This was your fourth. This was your fifth slide. This was your sixth. ये बोल रहे हो बच्चा? तेजस? यस सर, यहाँ पे आपने एंड में कुछ लिखने बोला था, मेरा वो पार्ट मिस हो गया था। एंड में आफ्टर राइटिंग हाइपर बोला, यू सेड समथिंग टू राइट। अच्छा, मैंने आपको बोला होगा कि n और u आपस में हाइपरबॉलिक रिलेशनशिप शेयर करते हैं, ये बोल रहे हो? n and u are related by hyperbolic relationship। वो सिर्फ एक टर्म है, like nothing that serious, but हाँ लिखना चाहते हो तो well and good लिख लो। n and u share a hyperbolic relationship, share hyperbolic relationship। written बच्चा? यस सर। ओके, एनीवन एल्स कुछ छूटा हो तो बता दो, कुछ पूछना हो। राहुल तुम कुछ पूछ रहे थे बच्चा, पूछ लो।
हेलो राहुल बच्चा, यू देयर इन क्लास? यस सर। हाँ बच्चा पूछो। सर वो ग्राफ में जो आपने बोला था बी को बी नहीं इंक्लूड होगा। बी कहाँ पर बोल रहे हो? हाँ बी के बारे में। दोबारा से पूछो, किस जगह पे? इसी ग्राफ की बात कर रहे हो? एन सर यही ग्राफ। हाँ 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 राइट। नो सर, वो तो ग्राफ। हाँ ये वाला ये राइट। ग्राफ में आपने बी को एक्सक्लूड किया था। यस सर। हाँ हाँ सर तो फिर अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ सकता है क्या, मतलब जिसमें दोनों ही मतलब इनवर्सली ना हो प्रोपोर्शनल? देखो, मतलब क्वेश्चन तो अलग अलग तरह के कभी भी कहीं भी पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बस एक तरीका बताया कि अगर आपके पास किसी ग्राफ के लिए इक्वेशन दी हुई है और उस इक्वेशन से आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसका एक तरीका है कि एक क्वांटिटी को बढ़ा दो, देखो कि उसका असर दूसरी क्वांटिटी पे क्या होता है, फिर से उसी क्वांटिटी को घटा दो, फिर देखो दूसरी क्वांटिटी पे क्या असर होता है। तो इस तरह से इन पॉइंट्स के जरिए आप किसी भी ग्राफ को मार्क कर सकते हो। बेसिकली एक बेसिक तरीका है ग्राफ बनाने का, क्योंकि ना हर बार जरूरी नहीं है कि जो भी इक्वेशन दी जा रही है उसका आपको ग्राफ पता ही हो कैसा होता है। कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ तो हमको दिमाग में याद हो जाते हैं, लेकिन जो नहीं होते उसके लिए हम ये तरीका यूज कर सकते हैं कभी कभी। सो इट वाज जस्ट वन टेक्निक। आ सकता है बच्चा कहीं आपको बोल सकता है कि ये इक्वेशन है। जैसे आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है क्लास, थैंक यू, इस बात पे मुझे कुछ याद आया। एक पेपर होता है, उसका नाम है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, KVPY। आज इसको सर्च करना, राइट। ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है। इसमें क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों के लिए एक एग्जाम होता है जिसमें आपका पूरा, जैसे अगर आप आई थिंक 11th में जब आप ये देते हो तो इसमें आपको 4 पेपर्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्लास 10th की बायोलॉजी पूछी जाती है, ठीक है। तो आप लोग अगर ये देना चाहते हो एग्जाम, तो इसके बारे में आज सर्च कर लो। इसका टाइमिंग, इसका रजिस्ट्रेशन का डेट, एवरीथिंग इज जुलाई मंथ, राइट। तो आई थिंक जुलाई अगस्त के आसपास इसके एप्लीकेशन शुरू हो जाते हैं। इस साल आई डोंट नो कि क्या सीजन है या क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड कंडीशंस राइट नाउ। बट देन अगेन इसके बारे में खोज लो। अगर किसी तरह का कुछ और जानकारी चाहिए होगी इंटरनेट से जो न मिल पाए, मुझसे डिस्कस करना चाहो कि इसकी तैयारी कैसे करें सर, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो ऑन व्हाट्सएप। प्लीज पुट मी अ टेक्स्ट, आई लेट यू नो एंड आई कैन डिस्कस द सेम ऑन द क्लास, राइट। तो ओके, ठीक है कार्तिक, राइट। एनीवन एल्स, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क राहुल? एनीवन एल्स बच्चा लोग? ठीक है। So if done, thank you everyone. Thank you for being in the class. Yes, Amish कुछ बोलना है, बोलो बच्चा। तो बस एक छोटा सा डाउट था सर, वो जो स्टेरेडियन के केस में सर, वो हमेशा कोन ही बनता है कि हो सकता है पिरामिड वगैरह बनेगा कभी? देखो मैंने क्या किया, मैंने कोन क्यों लिया है, मैंने कोन बस आपको एनालॉजी समझाने के लिए लिया है। सो बेसिकली आपको ये समझाने के लिए कि जैसे एक सर्कल के लिए सेक्टर होता है, तो अगर इस सेक्टर को मैं एक 3 डायमेंशनल रूप देना चाहूं तो वो एक कोन बन जाएगा। बस मैं आपको ये समझाने के लिए वो एग्जांपल दिया है, नथिंग लेस नथिंग मोर। मतलब तुम चाहो तो पिरामिड के जरिए अगर बनाना चाहो बिल्कुल बना सकते हो। बहुत सारे छोटे 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 पिरामिड्स अगर ले लो तो हो सकता है तुम्हारे पास एक स्फीयर बन के आ जाए। आई नेवर नो, आई हैव नॉट ट्राइड इट, बट देन मेरे दिमाग की उपज थी कोन, तो मैंने आप लोगों को कोन के जरिए कन्वेंशनली कैसे एक स्फीयर बनता है वो समझाया। आप लोग ट्राई करना चाहो अगर, है ना, अगर इस चीज के बारे में मन में इतनी इच्छा हो तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ। सो टेक अ पेज, है ना, फोल्ड इट, मेक अ कोन। अब इस कोन में बस इतना करो कि इसका एक बेस अच्छा बना दो, दैट इज इस तरह से। घर पे हो, सपोज खाली हो और टाइम है तो ये कर सकते हो, राइट। मेक अ कोन फॉर योरसेल्फ, राइट। मेक श्योर करना कि ये चिपका दो यहाँ से बाय सम एनी एडेसिव। देन कट द बेस इन अ वे कि यहाँ पे एक सर्कल बन जाए, राइट, एक सर्कल ऐसा बन जाए। अब ऐसे इन सारे कोन्स को यहाँ पर ऐसे कई सारे कोन्स बना लो और यहाँ सेंटर से इनको चिपकाते जाओ, राइट, चिपकाते जाओ, हर तरफ कोन लगाते जाओ, तो आप देखोगे आपके पास एक बहुत सुंदर सा स्फीयर बन के आ जाएगा। अमीश क्लियर है क्या मैंने क्या कहा? यस सर। ट्राई करो, अगर सपोज एक संडे एक्टिविटी की तरह चाहो तो यू विल सी मैं जो क्या कहना चाह रहा हूँ इस चीज को आप विजुअलाइज कर पाओगे। क्लियर हो रहा है बच्चा? यस सर, क्लियर।
ठीक है, ओके बच्चा लोग. So class, then let's meet on Monday where we'll practice some questions based on this theory. लेकिन आपका संडे और आज का असाइनमेंट क्या है? डायमेंशंस को अच्छे से पढ़ना है, हर दिन 5 डायमेंशंस याद करने हैं, राइट? और उसको शाम को कॉपी में लिख के एक पेज में सेंड करना है, राइट? सुबह 5, शाम में वही 5 को दोबारा लिखना है. दिस इज वन असाइनमेंट. सेकंड इज एनसीईआरटी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को पढ़ना शुरू करो. अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो ई कॉपी कैसे एक्सेस करते हैं आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो. बस पहले मैसेज कर देना बिफोर यू कॉल, राइट? आई माइट नॉट बी ऑलवेज अवेलेबल टू टेक अ कॉल, सो प्लीज पुट अ मैसेज बिफोर यू आर एबल टू call me out, right class? So thank you everyone. Let us meet on Monday in case there are no queries, right class? You all are done? Okay, ठीक है class. So let's meet on Monday. Please make sure you finish your assignments before you come for the next class. Thank you.